Hello everyone, especially my dear student. I hope you are fine and well, and I also hope that you all know this is Ruksar Madam. So, welcome to my YouTube channel. So, today I am here with the rest of the chapter of Standard 9 Part 2 video. Okay? So, as always, before starting, let's revise previous part 1 video. In our part 1 video, we have studied that how the trade between India and Europe is carried through land route and sea route. And due to Turkish Muslims, the route between Europe and India stopped. So how the Europeans failed to find a new sea route to India. So many geographical discoveries began to find a sea route to India. Okay. In that, many brave sailors took venture to find out the sea route to India with the help of different kings. Okay. And then after we have seen that arrival of Europeans to India. How Europeans arrive in India. First Europeans to arrive in India, that was Portuguese, then after Dutch from Holland, then Danish from Denmark, then French people, then Britishers. We all know that one by one have the different Europeans enter into India with the intention of the trade only. But after sometimes they are emerging in India as a political power. And different battles fought between East India Company and different kings, that is Battle of Plassey and Battle of Buxar. And we all know that previously we have studied what was the outcome of that battles. In both the battles, East India Company won the battles, and in Battle of Buxar, after winning the battle by East India Company get Diwani rights. Okay, that much we have studied in my part 1 video of chapter. So dear student, as always, I suggest you, if you haven't seen my part 1 video of this chapter, so just now go to my YouTube channel and watch that part 1 video. It's just like that मूवी के बीच में आप एंटर हो गए तो you don't know who's hero and who's villain. It's just like sing. So you have to compulsory watch my part 1 video. So go and watch it if you haven't watched. So now without taking much of time, let's start our rest of the chapter. So we were on the topic page number 5, expansion of the company rule. So as always, I will explain you line by line. The English government passed a regulating act in 1773 AD, according to which the governor of Bengal was made the governor general. English government has passed a regulating act in 1773 AD. इंग्लिश गवर्नमेंट ने 1773 AD में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था. उसके मुताबिक विच द गवर्नर ऑफ बंगाल, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसे क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल. एंड ऑल द ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी वेर ब्रॉट अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल. और उसे गवर्नर जनरल बना देने के बाद जितनी भी ट्रेड और पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी कंपनी की, वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ रही थी, उस गवर्नर जनरल के अंडर में. एंड द मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वेज ब्रॉट अंडर हिम. एंड उसी के साथ क्या हो रहा था, जो मुंबई मद्रास गवर्नर है और उसके जो काउंसिल्स है वो डायरेक्टली किसके अंडर आ जा रहे थे, जनरल गवर्नर के अंडर. ओके. Thus Warren Hastings became the first governor general of India. Thus जैसे ये रेगुलेटिंग एक्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद फर्स्ट जनरल गवर्नर जो बने थे, who is that, वॉरेन हेस्टिंग्स. ओके.
During his tenure, the first Maratha war and second Mysore war with Hyder Ali of Mysore was waged. Okay, during his tenure, जब वॉरेन हेस्टिंग जनरल गवर्नर बने तो उनके टाइम पीरियड में फर्स्ट मराठा वॉर हुआ था एंड सेकंड मैसूर वॉर विथ हैदर अली ऑफ मैसूर. किसके साथ हुआ था? विथ हैदर अली ऑफ मैसूर, उनके साथ ये वॉर हुआ था. ठीक है. The problem for the East India Company increased because it had to face both the powers simultaneously. So, what was the problem faced by the East India Company? अब ये दो वॉर हुए, फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकेंड मैसूर वॉर. सो द प्रॉब्लम अराइज फॉर द कंपनी. कंपनी के लिए क्या प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी कि कंपनी को ये दोनों पावर्स को साइमल्टेनियसली फेस करना पड़ रहा था. ठीक है. कॉर्नवालिस took over as governor general after Warren Hastings. Now जनरल गवर्नर चेंज हो रहे थे, सो दैट आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग कौन आए? कॉर्नवालिस टुक ओवर द जनरल गवर्नर. जनरल गवर्नर कौन बने? कॉर्नवालिस. ठीक है. ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विथ टीपू सुल्तान. एंड जब कॉर्नवालिस जनरल गवर्नर बने उनके टाइम पीरियड में क्या हुआ? थर्ड मैसूर वॉर हुआ. किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ, फेमसली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर. ठीक है, जिनको फेमसली किस नाम से जाना जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर. द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद द मराठास एंड निजाम टू डिफीट द टीपू सुल्तान. कंपनी सिंगल हैंडेडली टीपू सुल्तान को हरा नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने टीपू सुल्तान को हराने के लिए किसके साथ हैंड्स ज्वाइन किए? विथ मराठास एंड निजाम्स. उनके साथ हैंड ज्वाइन करके कंबाइंड फोर्सेस में टीपू सुल्तान को हरा दिया. ठीक है. टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी. और जो टीपू सुल्तान थे वो इस कंबाइंड फोर्सेस के सामने खड़े नहीं रह पाए और क्या हुआ? उन्हें मजबूरन ट्रीटी एक्सेप्ट करनी पड़ी, जो ब्रिटिशर्स का कॉन्ट्रैक्ट था वो. ओके. सो टर्न द पेज, कम ऑन द पेज नंबर 6. ओके. आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन शॉर बिकम द गवर्नर जनरल. कॉर्नवालिस के बाद कौन आ रहा है? कौन गवर्नर जनरल बन रहा है? दैट इज सर जॉन शॉर. ड्यू टू सम रिच पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय हिम द ईस्ट इंडिया कंपनी फेम डिक्लाइन एंड मराठा बिकम स्ट्रॉन्गर. व्हेन सर जॉन शॉर का टेन्योर चल रहा था, जब उनका टाइम पीरियड चल रहा था, उनके द्वारा कुछ रिच पॉलिसीज अपनाई. उन्होंने कुछ ऐसी नीति अपनाई जो बहुत सख्त थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? कंपनी का जो फेम था इंडिया में वो डिक्लाइन हो गया और अदर एंड पर क्या हो रहा था? जो मराठास है वो बहुत पावरफुल हो रहे थे. सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली हु केम आफ्टर जॉन शॉर, तो जॉन शॉर उनके बाद कौन आए? नेक्स्ट जनरल गवर्नर, दैट इज वेलेस्ली. जो आए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि उनको कंपनी को सुप्रीम पावर में कन्वर्ट करना है, इंडिया में सबसे सुपीरियर बनाना है. फॉर दिस वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. और इसी के लिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए वेलेस्ली ने क्या इंट्रोड्यूस किया? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट्स एडॉप्टेड अंडर दिस आर एज फॉलो. नाउ व्हाट वाज द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या है? वी विल स्टडी इन डिटेल. और कौन कौन से स्टेट ने ये सिस्टम को एक्सेप्ट किया था? लेट्स स्टडी इन डिटेल. ओके. Now the term and condition of the subsidiary alliance system. Let's see one by one. The army trained by the East India Company government will be provided to the state that accept the system. Now, term and condition as per the system of subsidiary alliance. First condition क्या थी कि the army trained by the East India Company, जिस आर्मी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेन किया है, जो ट्रेंड आर्मी है, वो उसी स्टेट को प्रोवाइड की जाएगी कंपनी के थ्रू जो इस सिस्टम को एक्सेप्ट करेंगे. ओके. द सेकेंड कंडीशन, इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर आर्मी और गिव अवे प्रोविंसेस विद इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिशर्स. नाउ इन रिटर्न, जो भी स्टेट सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट करता है तो उसकी इन रिटर्न में उस स्टेट को क्या करना है? द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविंसेस. क्या करना है उसे? अपनी आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी को जब भी ज़रूरत हो तो प्रोवाइड करनी है, या फिर क्या करना है? गिव अवे प्रोविंसेस विद इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिशर्स. अपनी जितनी भी प्रोविंसेस से उसको जितनी भी इनकम हो रही है, उस इनकम में से इक्विवेलेंट बराबर का हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है. ठीक है. नाउ द थर्ड कंडीशन, विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट
wage a war or sign treaty with other state without the permission of a company. मतलब अब जब जो भी स्टेट सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहा है तो विदाउट द परमिशन ऑफ कंपनी, वो कंपनी के बिना परमिशन के किसी भी स्टेट के साथ लड़ाई नहीं कर सकता है, बैटल नहीं कर सकता, और किसी भी दूसरे स्टेट के साथ कोई भी ट्रीटी साइन नहीं कर सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता है. ओके. एंड द फोर्थ वन कंडीशन इज दैट देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली. और फोर्थ कंडीशन क्या थी, जो भी स्टेट की असेंबली है, ठीक है, वहाँ पर कंपलसरी एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होगा उस असेंबली में. ठीक है. एंड द फिफ्थ वन इज अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट. और जो दूसरे फॉरेनर्स है, बाहर के लोग, उसे स्टेट में एम्प्लॉय नहीं करना है. ठीक है. दिस वॉज द कंडीशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. नाउ द स्टेट रूलर्स हु एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. यहाँ पर आपको कुछ स्टेट दिए गए हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था. फर्स्ट वन इज निजाम, सेकेंड मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर. This all state accepted the subsidiary alliance system of East India Company, which was introduced by Wellesley. Now next in figure 1.5, Wellesley and subsidiary alliance system. You can see exactly what the picture describe. That was the Wellesley. और उसने जितने भी स्टेट के जो किंग्स हैं उनको देखो किस तरह से ट्रैप में किया है. इट वॉज नॉट बेनिफिशियल फॉर द किंग्स. ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ये कंपनी के फेवर में ही था. इट वॉज नॉट बेनिफिशियल टू द किंग्स, दोज हु आर एक्सेप्टिंग दिस सिस्टम. ओके. जो लोग इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे थे उनके लिए ये सिस्टम बेनिफिशियल नहीं था. दिस सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन. ये सिस्टम किसकी तरह था? इट वॉज लाइक अ स्वीट पॉइजन, मीठे जहर की तरह था. By implementing this system, Wellesley annexed many provinces and expanded the rule of East India Company. By implementing, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बाद वेलेस्ली ने बहुत सारी प्रोविंसेस को एनेक्स यानी छीन लिया था बहुत सारे राजाओं के हाथ से. ठीक है. और इसी तरह से उसने कंपनी का रूल एक्सपांड किया, इंडिया में फैला दिया अलग अलग जगह पे. ठीक है. गवर्नर जनरल वेलेस्ली आस्क्ड टीपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. एंड देन आफ्टर वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को पूछा कि वो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट कर ले, बट विच ही रिफ्यूज. टीपू सुल्तान ने क्या किया? ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. फॉर डिक्लाइनिंग द अलायंस सिस्टम, द कंपनी विथ सपोर्ट फ्रॉम द निजाम अटैक मैसूर इन 1799. सो टीपू सुल्तान ने जैसे ही उनका प्रपोजल रिफ्यूज किया तो व्हाट्स गोइंग ऑन, देखो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया. विद द सपोर्ट फ्रॉम द निज़ाम, निज़ाम की मदद से उन्होंने मैसूर में अटैक कर दिया 1799 में. ठीक है. टीपू सुल्तान पर. ठीक है. ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर, टीपू लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड दिस वॉज द फोर्थ मैसूर वॉर. ये फोर्थ मैसूर वॉर हुआ जिसमें टीपू सुल्तान ब्रिटिश के सामने लड़ते हुए अपनी लाइफ से चले गए. ठीक है. वो हार गए, लॉस्ट हिज लाइफ, उनकी लाइफ खत्म हो चुकी थी. आफ्टर वेलेस्ली, हेस्टिंग केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल. नाउ नेक्स्ट जनरल गवर्नर हुज कमिंग आफ्टर वेलेस्ली. आफ्टर वेलेस्ली हेस्टिंग केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल. हेस्टिंग आ रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट जनरल गवर्नर. ही वेज्ड अ वॉर विथ नेपाल एंड मेड द गुरखास टू ज्वाइन द आर्मी. उन्होंने किसके साथ लड़ाई लड़ी? ही वेज्ड, उन्होंने किसके साथ बैटल लड़ी? विथ नेपाल. और नेपाल के साथ वॉर वेज किया और वहाँ के जो गुरखास है उनको ज़बरदस्ती ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ज्वाइन करवा ली. ठीक है. हेस्टिंग फॉट अ बैटल विद द पिंडारास एंड टू कंट्रोल ओवर दैम. और हेस्टिंग ने और किसके साथ बैटल लड़ी? देखो पिंडारास के साथ बैटल, लड़ाई लड़कर उनके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया. विद द थर्ड मराठा वॉर, द सुप्रीमाइसी ऑफ द कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड. एंड देन आफ्टर फाइनली थर्ड मराठा वॉर हुआ, उसके बाद जो कंपनी का फेम डिक्लाइन हुआ था उसकी फाइनली जो सुप्रीमाइसी डाउनफॉल हुई थी वो वापस से कंपनी ने एस्टेब्लिश कर ली. ठीक है. इंडिया में इन कंपैरिजन टू अर्लियर जनरल गवर्नर, विलियम बेंटिक इज नोन एज लिबरल गवर्नर जनरल.
इन कंपैरिजन देखो अभी जो विलियम बेंटिक नेक्स्ट जनरल गवर्नर आए हैं उनका कंपैरिजन जो अर्लियर के जो जनरल गवर्नर आए उनके साथ करते हैं तो वो कैसे जनरल गवर्नर थे, ही इज लिबरल गवर्नर जनरल। उनके कंपैरिजन में वो काफ़ी लिबरल जनरल गवर्नर थे, ठीक है। उनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत लिबरल थी लोगों के लिए। Bentinck believed that the dissatisfaction in the different states due to the imperialist policies adopted by the previous general governor could not bring about any unity. Bentinck ऐसा मानते थे कि that the dissatisfaction in the different state, जो अलग अलग स्टेट है उनके बीच उनके मन में डिससेटिस्फेक्शन होगा अगर कंपनी के पॉलिसीज को लेकर, इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी को लेकर, तो उसकी वजह से क्या होगा, गवर्नर जनरल कुल नॉट ब्रिंग अबाउट एनी यूनिटी। जो जनरल गवर्नर है वो कोई यूनिटी लेकर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो सारे स्टेट के बीच में सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। सो ही वॉज वेरी लिबरल इन हीज डीड। इसीलिए बेंटिक कैसे थे, जो भी काम करते थे उनका उसमें वो काफ़ी लिबरल थे, ठीक है। नेक्स्ट, डेलहाउसी केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल इन 1848। नाउ नेक्स्ट आफ्टर बेंटिक हुज कमिंग, डेलहाउसी कमिंग एज द जनरल गवर्नर इन 1848। ही वॉज अ फ्रेंच इम्पेरियलिस्ट। वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा क्रूअल जनरल गवर्नर थे, ठीक है। डेलहाउसी एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। नाउ डेलहाउसी ने कंपनी के पावर को सुप्रीम बनाने के लिए इंडिया में उन्होंने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एडोप्ट की फॉर द एक्सपांशन ऑफ द कंपनी एंड द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इन इंडिया। ब्रिटिश साम्राज्य को इंडिया में फैलाने के लिए उन्होंने कौन सी पॉलिसी एडोप्ट की, उन्होंने एनेक्सेशन पॉलिसी। नाउ व्हाट वाज द एनेक्सेशन पॉलिसी, ओके। One chart is given to you, that is Dalhousie policy of annexation. The chart shows you what was the annexation policy. Actual annexation policy क्या है, उस चार्ट से आप clear insight ले सकते हो about the annexation policy. Annexation यानी छीनना, ठीक है। annexation by war, देखो वो दिया है फर्स्ट वन, annexation by war। उसके थ्रू डेलहाउसी ने काफ़ी स्टेट्स को एनेक्स किया है। यू कैन सी दैट इज मेंशन बिलो। एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर, किसी राज्य का कोई लीगल हेयर वारिस नहीं है तो ऑन दैट प्रिटेक्स्ट डेलहाउसी उस राज्य को एनेक्स कर लेते थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में। एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट यानी जो किंग है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा है अपना किंगडम, ये प्रिटेक्स, ये बहाना बताकर भी वो राज्य को एनेक्स कर लेते, पर्टिकुलर स्टेट को अपने कंट्रोल में ले लेते थे। एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स ऑफ डेब्ट कलेक्शन का बहाना बताकर भी वो स्टेट को, जो राज्य है, उसे अपने कंट्रोल में कर लेते थे, ठीक है। एनेक्सेशन टू एंड ए नेम शेक रूल, और नेम शेक रूल का प्रिटेक्स बताकर भी एनेक्स कर लिया जाता था किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को, ठीक है। बिलो मेंशन नेम गिवन टू यू, कौन से प्रिटेक्स पे डेलहाउसी ने इन सारे स्टेट को एनेक्स किया था, ओके। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी इन डिटेल। बिसाइड बीइंग एन इम्पेरियलिस्ट, डेलहाउसी वाज आल्सो ए रिफॉर्मिस्ट। नाउ इम्पेरियलिस्ट होने के बावजूद, इतने सख्त उनकी नीतियां होने के बावजूद डेलहाउसी की, उन्होंने हमेशा कंपनी के बेनिफिट के लिए ही सोचा, बट डेलहाउसी वाज आल्सो ए रिफॉर्मिस्ट। उनको एक रिफॉर्मिस्ट भी कहा जाता है बिकॉज वो जब इंडिया में आए तो वो काफ़ी चेंजेस लेकर आए थे, सुधार लेकर आए थे इंडिया में। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया, फर्स्ट रेलवे लाइन जो इंडिया में आई जस्ट बिकॉज ऑफ डेलहाउसी के टेन्योर में ही आई। दैट वाज बिटवीन मुंबई थाने, मुंबई से लेके थाने की रेलवे लाइन इंडिया में आई, जो कब आई थी 1853 एडी में। वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इंडिया और इंग्लैंड के बीच का जो वायरलेस सिस्टम है वो भी डेलहाउसी के टेन्योर में ही आया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो भी डेलहाउसी के टाइम पीरियड में आया था।
इंग्लिश एजुकेशन भी डलहौजी ही लेकर आए थे, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें डलहौजी इंडिया में लेकर आए थे। दैट्स वाई डलहौजी इज ऑल्सो कॉल्ड ए रिफॉर्मिस्ट। were all introduced during his tenure. He passed laws to ban child marriage and advocated widow remarriages. उन्होंने ये सारी फैसिलिटीज़ तो लेकर आए ही थे, लेकिन उसके साथ कुछ लॉज भी पास किए थे। इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसे रिच और रिचुअल्स है जो सोसाइटी का डेवलपमेंट होने में एक ऑब्स्टिकल्स है, जस्ट लाइक ए चाइल्ड मैरिज और फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, विडो रीमैरिज जैसे। तो उसमें से कुछ लॉज को क्या किया, डलहौजी ने बैन भी किए थे। कौन से लॉज देखो, ही पास लॉज टू बैन द चाइल्ड मैरिज, जो अर्लियर एज में बच्चों की छोटी एज में जो मैरिज कर दी जाती है उस चीज़ को उन्होंने बैन किया था, ठीक है। एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिजेस, अर्लियर इंडियन सोसाइटी में जो विडो होती है, कोई भी लेडी है उसका हस्बैंड मर जाता है तो शी इज़ नॉट एबल टू मैरी अगेन, बट उन्होंने उस चीज़ को भी एडवोकेट किया, परमिशन दिलवाई कि पर्टिकुलर लेडी को भी अपनी लाइफ स्पेंड करने की परमिशन है। Within 100 years from the Battle of Plassey in 1757, the British rule and the empire both expanded. Now within the 157 से लेकर 100 ईयर्स का जो टाइम पीरियड ब्रिटिश ने यहाँ पास आउट किया इंडिया में, उसमें उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश ने क्या किया, अपना एम्पायर बहुत ज़्यादा, अपना रूल और एम्पायर दोनों बहुत ज़्यादा फैला लिया था, एक्सपांड कर लिया था इंडिया में। बट इन द प्रोसेस दे हैड टू फेस द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ इंडियन स्टेट। बट ये जो प्रोसेस थी अपना रूल और अपना ट्रेड इंडिया में एक्सपांड करने की, ठीक है, उस प्रोसेस में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन फेस किया इंडियन स्टेट का। किसका, इंडियन स्टेट्स का, जो इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स है, सभी स्टेट का डिससेटिस्फेक्शन उन्होंने फेस किया। एंड दिस वॉज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857 AD। और ये डिससेटिस्फेक्शन मैनिफेस्टेड यानी बाहर निकल कर आया, किस फॉर्म में, हमारी फर्स्ट स्ट्रगल जो हमने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी थी 1857 में, उस फॉर्म में बाहर निकल कर आया इंडियंस लोगों का डिससेटिस्फेक्शन। नाउ नेक्स्ट हियर वी हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी के रूल की इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो रही थी इंडिया पे, दैट विल बी गिवन इन दिस पैराग्राफ। सो लेट्स सी डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी की इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया में क्या हो रही थी। When we evaluate the 100 years of the company rule in India, अगर हम इवेल्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, we see back 100 years of the company rule in India, कंपनी का जो 100 years का रूल इंडिया में रहा, उसको हम अगर इवेल्यूट करते हैं तो we realize that India which had enviable position in the world in the previous centuries become merely a country that produced raw material for England and a prospective market for goods produced in the factories। अगर हम 100 ईयर्स का एवोल्यूशन करते हैं तो हमें पता चलेगा, वी रियलाइज दैट के इंडिया जो एक पहले कैसी कंट्री थी, एविबल पोजीशन इन द वर्ल्ड प्रीवियस सेंचुरीज में, उसकी एक इनकम्पेरेबल पोजीशन थी पूरे वर्ल्ड में, जो अब क्या बन चुकी थी, ब्रिटिश रूल के आने के बाद बिकम मेरली ए कंट्री दैट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर इंग्लैंड। वो एक ऐसी कंट्री बन चुकी थी जो अब सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के लिए रॉ मटेरियल बनाती है, और एक प्रोस्पेक्टिव मार्केट बन चुकी थी फैक्ट्रीज की। प्रोस्पेक्टिव मार्केट्स जो ऐसा जिसमें फैक्ट्रीज में क्या गुड्स प्रोड्यूस होता है, ओनली दैट। बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन, क्लॉथ, रो सिल्क, शुगर, जूट, मुस्लिन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1708 टू 1756। ओके, इस टाइम पीरियड में बंगाल क्या कर रहा था, अदर कंट्रीज में कॉटन, क्लोथ्स, रो सिल्क, शुगर, जूट, मुस्लिन, ये सारी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा था। बट आफ्टर द ड्यूअल पावर पॉलिसी, जैसे ही ड्यूअल पावर पॉलिसी आई, द ग्लिटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड। जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का जो ग्लिटर थी, जो चमक थी बंगाल की, वो फेडेड यानी उड़ गई। द ड्यूअल पावर पॉलिसी, नाउ व्हाट इज ड्यूअल पावर पॉलिसी, सो लेट मी टेल यू। ड्यूअल पावर पॉलिसी जैसे उसे द्विमुखी शासन भी कहा जाता है, उसमें ऐसा होता है, वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन बंगाल, जो पहली बार बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये द्विमुखी शासन होता क्या है,
whereby the power of the collecting revenue was with the British while the responsibility of people's welfare was with the Nawab. So here you can see द्विमुखी शासन में ऐसा होता है कि जो बंगाल के जो पीपल्स है, ठीक है, उनके वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? किंग के पास. वाइल द कलेक्टिंग द रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? पावर किसके पास है? वो कंपनी के पास है. तो कंपनी इज कलेक्टिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल ऑफ बंगाल, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल लाइज विद द नवाब. सो thus the British got the power without any responsibility and the Nawab had responsibility without any power. thus तो क्या हो गया यहाँ? तो द ब्रिटिश गॉट द पावर, ब्रिटिश को पावर मिल गया बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म किए हुए, और नवाब के पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और उसके पास पावर्स नहीं थे. ठीक है, जब नवाब के पास इनकम ही नहीं आएगी तो वो लोगों का वेलफेयर किस तरह से करेगा? ठीक है. दिस वॉज नॉन एज सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच रून बंगाल इकोनॉमिकली. और ये क्या था? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था जिसने बंगाल को पूरी तरह से इकोनॉमिकली, आर्थिक तरह से पूरी तरह से उसे बर्बाद कर दिया था. द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन पीजेंट अडेप्टर. जो अनफेयर पॉलिसी थी, क्या रेवेन्यू कलेक्ट करने की, टैक्स कलेक्ट करने की कंपनी की, उसने इंडियन पीजेंट, जो इंडियन पीजेंट थे, जो किसान थे, उन्हें डेप्टर्स बना दिया, कर्जदार बना दिया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्री. और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो अनफेयर टैक्सेस इम्पोज कर रही थी. जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, जो प्रोडक्शन कर रही थी इंडिया में, उन इंडस्ट्रीज पे अनफेयर टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे थे. ठीक है. They adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industry. और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत ही डिसीटफुल प्रैक्टिसेस अपनाई इंडियन इंडस्ट्रीज़ को क्या करने के लिए? ख़त्म करने के लिए, उन्हें बर्बाद करने के लिए. बिकॉज ऑफ विच इट कम्प्लीटली कोलैप्स्ड. और इन सारी चीज़ों की वजह से, ब्रिटिश की इन सारी डिसीटफुल प्रैक्टिसेस की वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरह से कोलैप्स्ड, यानी ठप हो गई, बंद हो गई. ठीक है. द इंडियन आर्टिशियंस बिकम पुअर एंड टर्न द पेज अनएम्प्लॉयड. जो इंडियन आर्टिशियंस थे वो बहुत गरीब हो रहे थे, दिन पे दिन गरीब होते जा रहे थे और अनएम्प्लॉयड भी हो गए थे. अब उनके पास कोई काम नहीं बचा था. द कंपनी ट्रेडर फोर्स द वीवर ऑफ बंगाल टू साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ क्लोथ्स इन शॉर्ट पीरियड. जो कंपनी के जो ट्रेडर्स थे वो बंगाल के जो वीवर्स है उन्हें फोर्स कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कि वो डेफिनेट टाइम पीरियड में उनको सर्टेन क्वांटिटी प्रोवाइड करे क्लोथ की, शॉर्ट टाइम पीरियड में, कम टाइम पीरियड में जितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी उन्हें दी गई है वो कंपनी को प्रोवाइड करे. फोर्स किया जा रहा था बंगाल के जो वीवर्स है उन्हें. ठीक है. इफ द वीवर रिफ्यूज्ड ही वुड पनिशेबल बाय बीइंग लैश्ड और जेल्ड. अगर कोई वीवर रिफ्यूज कर रहा था कि नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, तो उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा था? ही विल बी पनिश्ड बाय बीइंग लैश्ड. लैश्ड यानी उसको कोड़े मारे जा रहे थे. ठीक है. या फिर उसे जेल में बंद कर दिया जा रहा था. बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेजेस वेर सेल्फ रिलायंट. जब कंपनी हमारे इंडिया में नहीं आई थी तो जो इंडियन विलेजेस है वो सेल्फ रिलायंट थे, मतलब इंडिपेंडेंट थे और अपनी तरह से अपना सब कुछ खाने का जो भी है अर्न कर पा रहे थे, अपना बिजनेस चला पा रहे थे. सेल्फ रिलायंट मतलब अपने काम के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे. और प्रॉस्परस थे मतलब वेल डेवलप्ड थे, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब उनके पास थी. बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकम डिपेंडेंट एंड पुअर. लेकिन जैसे ही कंपनी आई और कंपनी का रूल आया तो कंपनी के रूल में जो इंडियन विलेजेस है वो कैसे हो गए? बिकम डिपेंडेंट एंड पुअर. हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहने लगे और बिल्कुल गरीब हो गए थे. आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी. ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने एंड स्टीमर सर्विस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज स्टार्टेड एंड डेवलप्ड ऑफ द पोर्ट इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता ऑल्सो टुक प्लेस. ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था उस टाइम ही फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई टू थाने, जो इंडिया में फर्स्ट रेलवे लाइन आई थी मुंबई से लेकर थाने तक की, वो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में ही आई थी. और जो फर्स्ट स्टीमर सर्विस बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड,
इंडिया और इंग्लैंड की फर्स्ट स्टीमर सर्विस आई थी, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के टेन्योर में ही आई थी, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता ऑल्सो टुक प्लेस, और जो पोर्ट्स डेवलप हुए थे मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता में, ये भी कंपनी के रूल में ही आए थे, ठीक है। ओके, हियर इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी की इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडियन पीपल पर, इंडिया पर बहुत ही नेगेटिव हो रही थी, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल सी सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल। अब हम देखेंगे जो कंपनी का रूल है उसकी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रही थी, इंडियन सोसाइटी पर सोशल इम्पैक्ट क्या हो रही थी, ठीक है। तो लेट्स सी डेवलपमेंट अमॉन्ग पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जब ब्रिटिश लोग हमारी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें क्या मिली, स्पिरिट मिली फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब हम अपने माइंड के जो थॉट्स है किसी के भी सामने रख सकते हैं, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। थॉट डेवलप अमंग पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर, थॉट लोगों के जो थॉट्स है उसका डेवलपमेंट हुआ ड्यू टू किस चीज़ की वजह से, न्यूज़पेपर के डेवलपमेंट होने की वजह से। लोगों को पता चलने लगा कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। In the Indian society, certain wrong social customs, rites and rituals were prevalent during this time, like sati system, female infanticides, child marriages, etc. And in Indian society, हमारी जो इंडियन सोसाइटी में certain wrong social custom, कुछ मैंने आपको जैसे अर्लियर पहले कहा कि इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसे सोशल कस्टम्स, रिच एंड रिचुअल्स थे जो सोसाइटी का डेवलपमेंट होने में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स थे, सोसाइटी को डेवलप नहीं होने दे रहे थे, ठीक है। वेर प्रिविलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब इस टाइम पर प्रिविलेंट थे, चल रहे थे, जैसे कि सती सिस्टम। सती सिस्टम यानी व्हेन कोई लेडी है उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसके साथ ही उसके हस्बैंड की जो डेड बॉडी है उसके साथ ही उस लेडी को सती कर दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी जो फीमेल चाइल्ड है उसकी हत्या करना, उसको मार देना अपनी मदर के गर्भ में, ठीक है, उसे फीमेल इन्फेंटिसाइड कहते हैं, ठीक है। पहले के लोग जो होते हैं बेबी गर्ल नहीं चाहते थे, इसलिए वो लोग क्या करते थे, जो बेबी गर्ल अपनी मदर के गर्भ में है उसे ही क्या करते थे, मार देते थे, ठीक है। दैट वाज फीमेल इन्फेंटिसाइड। चाइल्ड मैरिजेस, अर्लियर पहले के जो लोग थे, बच्चे जिस टाइम उनकी स्कूल जाने की एज हुआ करती थी, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता था, उन लोगों की मैरिज कर दिया करते थे, ठीक है। तो ये सारे जो रिट्स एंड रिचुअल जो समाज के लिए नेगेटिव थे, रॉन्ग कस्टम्स थे समाज के लिए, राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता, बहराम जी मलबारी एटसेट्रा वेर द स्टॉलवर्ड्स whose role was instrumental in getting the law passed with the help of the Britishers. इन तीन लोगों का बहुत ज़्यादा समर्थन रहा किस चीज़ में, ये सारे जो रॉन्ग कस्टम्स हैं उनको स्टॉप करवाने में, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प लेके इन सारे रॉन्ग कस्टम्स को इंडियन सोसाइटी में से हटाया, ठीक है, दूर किया। As the English administrative framework in India was anglicized, there was a demand for the people with the knowledge of English. जैसे अब ब्रिटिश लोग हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, ठीक है, तो इंग्लिश एजुकेशन, जिन लोगों को इंग्लिश एजुकेशन की नॉलेज है, ऐसे पीपल्स की डिमांड होने लगी। सो फॉर दैट इंग्लिश एजुकेशन बिगेन टू बी इम्पार्टेड इन इंडिया, तो इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में भी शुरू हुआ, ठीक है। इम्पार्टेड किसके थ्रू इम्पार्टेड हुआ, किसके थ्रू बिगेन हुआ, किसके परिश्रम की वजह से, तो हियर ड्यू टू लॉर्ड मिकॉली एंड्यूअर्स विद द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, किसके थ्रू इम्पार्टेड होना शुरू हुआ, लॉर्ड मिकॉली, उनके एक कोशिश की वजह से क्या हुआ, इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन इम्पार्ट मिलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, लोगों को इंग्लिश एजुकेशन सिखाना स्टार्ट किया गया। एज रिकमेंडेड बाय चार्ल्स वुड, और किसके रिकमेंडेशन की वजह से हुआ था ये सब कुछ, एज रिकमेंडेड, चार्ल्स वुड ने रिकमेंड किया था, उनके रिकमेंडेशन पे लॉर्ड मैकॉले ने इम्पार्टेड यानी इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू किया। यूनिवर्सिटीज वेर एस्टैब्लिश इन मुंबई, मद्रास
एंड कोलकाता। एंड फॉर दैट इंग्लिश एजुकेशन के लिए इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश हुई, कहाँ पर, मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता। A whole class of the people with the knowledge of English developed because of the English education. Now a whole class with the knowledge of English, मतलब एक ऐसा क्लास एस्टेब्लिश हो गया था अब इंडिया में जिनके पास इंग्लिश नॉलेज था, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन डेवलप होने की वजह से इंडिया में एक ऐसा क्लास एस्टेब्लिश हो चुका था जिनके पास इंग्लिश नॉलेज है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन का इंडिया में आने की वजह से। With the passage of the time, this group made demand for the social reforms and gave momentum to the process of the reforms. और with the passage of the time, जैसे जैसे लोगों में इंग्लिश एजुकेशन की अवेयरनेस आई तो क्या हुआ, दिस ग्रुप, ये जो क्लास था जिसके पास इंग्लिश नॉलेज थी, क्या किया इन लोगों ने, डिमांड फॉर द सोशल रिफॉर्म, समाज में जो ऐसे रिच और रिचुअल्स है जो समाज को अवरोध कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ऐसी चीज़ों के रिफॉर्म्स की डिमांड की उन्होंने कि सोसाइटी में चेंजेस होने चाहिए। एंड गेव मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ द रिफॉर्म्स, और ऐसे लोगों ने समाज में मिलकर चेंजेस भी किए, ठीक है। सो हियर वी एंड द चैप्टर एंड व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर, दस द ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू इंडिया बीइंग अलर्ट by the prosperity and the trade opportunity. Thus the East India Company क्या हुआ था इंडिया में, इंडिया की जो ग्लिटर है, इंडिया की जो चमक है वो देखकर अट्रैक्ट हुई, उसकी प्रॉस्पेरिटी और उसकी ट्रेड अपॉर्चुनिटी को देखकर, और इस वजह से वो इंडिया में आई, ठीक है। द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस सर्टेन गुड एंड बैड रिजल्ट इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल फील्ड। जो कंपनी इंडिया में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने क्या किया, प्रोड्यूस सर्टेन, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी कुछ चेंजेस, कुछ अच्छे चेंजेस और कुछ बुरे चेंजेस इंडिया के जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल फील्ड्स है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी अच्छे और बुरे चेंजेस किए थे, ठीक है। गुड दैट मीन्स वो यहाँ पर आए और उन्होंने इंडिया के लिए जो रेलवे लाइन लेकर आए थे, वायरलेस सिस्टम लेकर आए थे, और कुछ जो ऐसे रिच रिचुअल्स है जो हमारी सोसाइटी को क्या कर रहे थे, डेवलप होने में ऑब्स्टिकल्स हो रहे थे, ऐसे रिच रिचुअल्स को उन्होंने बैन किया, दैट इज़ गुड। और बैड, व्हाट इज़ बैड, कि जैसे वो यहाँ आए और उन्होंने वो इंडिया को मतलब इंग्लैंड को इंडिया के कोस्ट पर क्या बनाना चाह रहे थे, वेल्दी और प्रॉस्परस बनाना चाह रहे, दैट वॉज बैड, ओके। The company adopted the policy of making England prosperous at the cost of the India, and reforms they made in the administration for their own interest indirectly proved to be beneficial for India. देखो जैसे मैंने आपको बताया, वो क्या कर रहे थे, इंग्लैंड को प्रॉस्परस बनाना चाह रहे थे, इंडिया के एनी कोस्ट, इंडिया के कोस्ट पर वो यहाँ से सारी प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ ले जाकर इंग्लैंड को प्रॉस्परस बनाना चाह रहे थे, दैट वाज बैड। एंड वो जो रिफॉर्म्स अपने बेनिफिट के लिए वो लोग इंडिया में लेकर आए थे, इनडायरेक्टली वो इंडिया के लिए क्या प्रूव हुआ, बेनिफिशियल प्रूव हुआ, दैट वाज द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर। ओके, सो हियर वी एंड द चैप्टर। ऑन दैट माय एक्सप्लेनेशन, some exercise is given to you. I hope dear student you are easily able to answer the following questions, question 1 to 4 on the basis of my explanation. I hope my explanation is enough for your studies. Thank you.